Okay, so a very good evening to everyone. My name is Ipshita Bishoi. I'm a first year student of BSc Psychology in Christ University, Ghaziabad. I'm an intern at Spirituality Health Inner Values Academy. The president of this organization, Dr. Azim Dana, will be here with us shortly. The speaker of today's session on thought management, Ms. Pooja Kapoor, is already here with us. I'd like to take a moment to introduce her. So, Ms. Pooja Kapoor is a teacher, motivational speaker, and a counselor. She has an experience of 15 years as a teacher. She has conducted workshops and talks for senior citizens, students, women empowerment, and rehabilitation centers. She has completed her degree of MSc in counseling and spiritual health. She has a bachelor's degree of education with guidance and counseling as an additional subject. She has completed her diploma in early childhood education and development. She also has a Bachelor of Commerce degree. So, with that, I would like to hand over the session to Ms. Pooja. Thank you, Beta. Thank you, Ipshita. So before I begin today's session, I would like to express my heartfelt gratitude to the President of Spirituality Health Inner Values Academy, respected brother Azim Danaji. Special thanks to Sister Samarpita, who's coordinating and organizing all these webinars from Cuttack branch of Spirituality Health Inner Values Academy. Thanks, dear Ipshita, for introducing me to the participants, and many thanks to all the participants. Your presence is a great motivation for me. So let's begin with today's session. I'll share my screen. Our topic is thought management. So, can anyone tell me क्या मतलब है thought management का? जब हम बोलते हैं thought management, so what does it mean? चलिए मैं बताती हूँ. I could not find dictionary meaning or scientific definition for thought management, so I gave it a thought. और मुझे जो समझ में आया meaning thought management का, मेरी समझ के according था ability to create right thoughts. That is called thought management. अब why is it important कि हम right thoughts create करें? अगर हम कोई भी thoughts create करें, हम अपने friend से कुछ भी बात करें, कुछ भी देखें, क्या जरूरत है अच्छे thoughts create करने? कोई बताएगा? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं डेस्टिनी, है ना? ये चीज तो हमने बचपन से सुनी है. ऐसा कैसे होता है? हम जो सोचते हैं हम वही बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वैसे हमारे कर्म बनते हैं, वैसे हमारे एक्शंस होते हैं, और जो हमारे एक्शंस होते हैं उससे ही एनवायरनमेंट बनता है हमारे घर का, हमारे वर्क प्लेस का, हमारा फ्रेंड सर्कल, and then that decides our destiny. So let us try to understand this with the help of I would request participants to please mute them. Okay, चलिए start करते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि कैसे thoughts create destiny. We'll try to understand this with the help of a simple example. Suppose I'm a college student, और कॉलेज में आकर मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि कॉलेज में कौन बच्चा होमवर्क करता है, कॉलेज में आके कोई होमवर्क थोड़ी ना करते हैं. अब जब मैंने ये थॉट क्रिएट किया तो मैंने ये थॉट बोला भी, जो मैं सोचूंगी वो मैं बोलूंगी. और जब मैंने अपने बैचमेट से कहा तो मुझे 2-3 अपने जैसे फ्रेंड्स मिल गए जो बोलते हैं कि हाँ कॉलेज में आकर तो कोई होमवर्क नहीं करता. तो हम ये डिसाइड किया कि हम होमवर्क नहीं करेंगे, ये हमारा एक्शन हुआ. और जब ये सोचा कि टाइमली अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने हैं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे होमवर्क थोड़ी ना करते हैं,
तो ऑफ कोर्स मेरे ग्रेड्स मेरे बैचमेट्स के कंपैरिजन में कम होंगे। चलिए हम यहाँ पे ग्रेड्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, मेरा नॉलेज मेरे बैचमेट्स के कंपैरिजन में कम होगा। So after 3 years when I'll complete my graduation or say after 5 years when I'll be postgraduate, मेरा level of knowledge जो मेरे साथ के दूसरे स्टूडेंट्स थे उनके कंपैरिजन में कम होगा। अगर मेरा लेवल ऑफ नॉलेज उनके कंपैरिजन में कम होगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा जॉब प्रोफाइल उन लोगों जितना अच्छा नहीं होगा। दैट मीन्स मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और आई थिंक शायद फाइनेंस भी मैटर करेगा कि मेरी सैलरी भी शायद इतनी नहीं होगी जितने मेरे बैचमेट्स की होगी। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम maybe I'm not able to afford all the comforts for my family जो मैं सोचती हूँ कि मुझे अरेंज करने हैं। और ये सब इतना सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक सिंपल से थॉट से कि कॉलेज में आकर होमवर्क कौन करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। आप सोच सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी लाइफ से रिलेट करके कि हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं हाउ दे इफेक्ट्स आवर डेस्टिनी। अब ये तो हुआ बहुत लॉन्ग टर्म बात कि हमारे थॉट्स हमारी डेस्टिनी को इफेक्ट करते हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा उसे इफेक्ट करते हैं। पर हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो हमारी इमीडिएट हेल्थ को, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करते हैं। जो भी थॉट्स हम क्रिएट करेंगे वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। आज से 25-30 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि हम जो सोचते हैं, या ये कहें कि हमारा दिमाग जो सोचता है उसका हमारी फिजिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट अब ऐसा नहीं है, हमारा दिमाग जो सोचता है उसका फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसे और डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए आज मेरा मूड थोड़ा खराब है, आई एम फीलिंग वेरी लो। तो कई बार ऐसे होता है जब अपसेट होते हैं तो एक कप चाय बनाकर पीने का भी मन नहीं करता। बट जब हम खुश होते हैं, जब हमारा मूड अच्छा होता है, से फॉर एग्जाम्पल आज मेरी मम्मा का बर्थडे है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे केक बनाना नहीं आता है बिल्कुल भी, पर फिर भी मैं इतनी खुश हूँ या मेरे थॉट्स इतने पॉजिटिव और एनर्जेटिक हैं कि मैं यूट्यूब में से देखकर सारा मटेरियल अरेंज कर कर कैसे भी करके आई विल बेक अ नाइस डिलिशियस केक फॉर हर। सो दिस इज कि हम जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ। आप लोगों ने देखा होगा फैमिली में जब फंक्शंस होते हैं, किसी की शादी होना या कुछ ऐसा मेजर फंक्शन होना, जो घर के बड़े लोग होते हैं जैसे दादी नानी, उन लोग को वॉशरूम भी मतलब हाथ पकड़ के लेकर जाना पड़ता है। बट अगर घर में कुछ ऐसा माहौल हो, वो लोग इतने खुश होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो खड़े होकर डांस भी कर लेते हैं। तो ये जो ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं अच्छे थॉट्स से, उसका हमारी फिजिकल बॉडी पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वॉशरूम जाने के लिए तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए, पर मैं बैठे बैठे डांस कर सकती हूँ। सो दीज आर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन आवर फिजिकल बॉडी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि पहले ऐसा कहा जाता था कि हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड जो थॉट क्रिएट करता है, उसका फिजिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट नाउ रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि हम जो सोचते हैं उसका इमीडिएट इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमारी ब्रेन में ऐसे केमिकल सिक्रीशन होता है जिससे हम बीमार पड़ते हैं या हम रिकवर करते हैं। और मैंने देखा है अपने काउंसलिंग करियर में, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द राधा उसका जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ये सब हमारे ब्रेन में हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिससे हम बीमार होते हैं। और अगर हम अच्छा सोचें तो हम ठीक भी जल्दी होते हैं। इसे हम समझ सकते हैं कि ऐसे कई एग्जांपल्स देखने में सामने आते हैं कि सेम डिजीज, सेम डॉक्टर, सेम, पर कोई जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम कितनी जल्दी हमारी बॉडी रिकवर करती है या हमारी लो फील करती है, हमारी एनर्जी लेवल कितना लो होता है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट। अच्छे थॉट्स क्रिएट करके या थॉट क्रिएट करके से लोगों ने ऐसा बहुत कुछ अचीव किया
जिससे शायद मेजॉरिटी लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. ये देखिए जो सबसे ऊपर पिक्चर है वो है मेजर डीपी सिंह की. ही इज आर्मी वेटरन. मेजर साहब का कारगिल वॉर के टाइम एक लेग खराब हो गया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया. उसके बाद पिक्चर है दीपा मलिक मैम का. शी वॉज 5 years old. उस समय उनके स्पाइन में ट्यूमर था. शी इज अ शॉट पुट प्लेयर नाउ एंड जस्ट लुक एट हर अचीवमेंट्स. उनकी दोनों बाजू में कितने सारे मेडल्स हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज अरुणिमा सिन्हा. आई थिंक शायद पिक्चर यहाँ से मिसप्लेस हो गई है. Arunima Sinha, she met with a train accident in which she lost her leg, and she is the first handicap to climb Mount Everest. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा सोचकर ठीक थॉट्स क्रिएट करके बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया. तो अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. ठीक है. Next is a new study has suggested that an average person has 6,200 thoughts per day. ये मैंने इंफॉर्मेशन लिया था news18.com से. तो अगर हम दिन में 6,200,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ थॉट्स. अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के हम थॉट्स क्रिएट करते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट मैनेजमेंट. तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि इन 6,200,000 थॉट्स में से कौन से थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं और कौन से थॉट्स हमें क्रिएट नहीं करने. ठीक है. तो चलिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ थॉट्स, कैसे थॉट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज टॉक्सिक थॉट्स. Thoughts of irritation, anger and anxiety. Thought of irritation हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से. सपोज 5 फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे. अब जब हम पांचों ने प्लान बनाया कि हम कल सुबह 10 बजे निकलेंगे घूमने जाने के लिए, हम में से 4 तो रेडी हो गए, एक फ्रेंड रेडी नहीं था. अभी स्लोली वो धीरे धीरे उठ रहा है, अपना काम कर रहा है. अब ये जो बाकी 4 फ्रेंड्स हैं, they can get irritated. उन्हें इरिटेशन हो सकता है वेट करने में, या ऐसा भी हो सकता है कि वो साथ में बैठे और सोचें चलो हम कोई गेम खेलते हैं जब तक वो रेडी होता है, या हम कोई गाना गाते हैं. वो लोग आराम से भी टाइम पास कर सकते हैं. एक्चुअली जब हम इरिटेट होते हैं या जब हम गुस्सा होते हैं, तब हमारे ब्रेन से टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं. तो हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें ऐसे थॉट्स क्रिएट नहीं करने, इरिटेशन के थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं. और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन किसी के लिए इरिटेटिंग हो सकती है और किसी के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है. से फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस जा रही हूँ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है. सो कई लोग ड्राइव करते करते बोलते रहते हैं इसका रोड सेंस सही नहीं है, ये सही से गाड़ी नहीं चला रहा है, अरे ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कर रहा है, रेड लाइट ठीक से नहीं चल रही है. गेटिंग इरिटेटेड. एंड सम पीपल आर लाइक ठीक है, हम दिल्ली में हैं, मेट्रोपॉलिटन में हैं, रोड पे ट्रैफिक तो होगा ही, एंड दे विदाउट क्रिएटिंग एनी थॉट दे विल गो. सो हमें क्या करना है, हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें सिचुएशन जैसी है उसे वैसे देखकर एक्सेप्ट करना है और आगे चलना. फर्स्ट वन वाज टॉक्सिक थॉट्स. अब उसके बाद है डिग्रेडिंग थॉट्स. अच्छा, ये जो थॉट्स हैं ये टॉक्सिक थॉट्स से भी ज्यादा खराब थॉट्स हैं, क्योंकि जब हम डिग्रेडिंग थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल तो लो होता ही है, हमारी बॉडी में बैड केमिकल्स भी सिक्रीशन होता है. अलोंग विद दैट जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा चरित्र है, हमारा कैरेक्टर है, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. इसे भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. लाइक जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, 5 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि हम लोग घूमने जाएंगे. 4 फ्रेंड्स रेडी हो गए, एक फ्रेंड अभी रेडी नहीं. अब ये जो 4 फ्रेंड्स थे उसमें से एक फ्रेंड ने ये थॉट क्रिएट किया, मैंने प्लान बनाया था, इसने मेरा सारा प्लान स्पॉइल कर दिया, नेक्स्ट टाइम ये प्लान बनाएगा ना देन आई एम गोइंग टू टेल हिम, मैं लेट करवाऊंगी.
मैं पूरा प्लान चौपट करवाऊंगी, दीज आर डिग्रेडिंग। ठीक है, मतलब हमने अपनी फिजिकल बॉडी को तो नुकसान किया ही, हमने अपनी पर्सनल बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, इवन थॉट्स ऑफ हर्ट, किसी ने कुछ कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, बुरा लगा मुझे, पर अब वो मुझे एक दिन बुरा लग रहा है, एक हफ्ते बुरा लग रहा है, एक महीना बुरा लग रहा है, एक साल बाद भी मैं उसे याद कर कर हर्ट फील कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कर, किसी ने कुछ कहा, उसका नॉलेज लेवल उतना था, उसकी समझ उतनी थी, उसने उसके अकॉर्डिंग अपने विचार व्यक्त किए, उसने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए। दूसरे की थॉट्स की वजह से हम अपनी फिजिकल बॉडी को तो हार्म नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें डिग्रेडिंग थॉट्स भी, थॉट्स ऑफ हर्ट, रिवेंज, हेट्रेड, जेलस, ऐसे थॉट्स क्रिएट नहीं करना। नेक्स्ट इज वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody will tell me, अरे आप पंजाबियों की नॉनवेज नहीं खाते, दिस इज अ वेस्ट थॉट। मतलब हाउ डज इट मैटर, फर्क पड़ता है? या कोई कहेगा, अरे आप साउथ इंडियन हो, आप कॉफी नहीं पीते, दिस इज अगेन अ वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट मतलब जिस थॉट में वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं उस थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। अरे इससे इसका ऑल दीज आर वेस्ट। अच्छा, अब बेस थॉट्स में लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे रास्ते में बहुत कचरा दिखाई दिया, अब मैंने थॉट क्रिएट किया, क्या एनसीडीबी कुछ काम नहीं करती है, कितनी गंदगी है, सफाई नहीं करती है, ऑल दीज आर वेस्ट थॉट्स। पर अगर मैंने ये थॉट क्रिएट किया कि गंदगी है और फिर कुछ प्लान किया उसको ठीक करने के लिए, देन तो इट्स ओके, ठीक है। पर मैं अननेसेसरीली अगर कोई थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी एनर्जी कम कर रही हूँ, दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो हमें वेस्ट थॉट भी क्रिएट नहीं करने। ओके, नेक्स्ट इज नेसेसरी थॉट्स। अच्छा, अब इसमें मजे की बात क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ये थॉट्स नेसेसरी हैं, पर ये भी हमें कम से कम सोचने हैं। कम से कम सोचने हैं कैसे, समझे इसे एक एग्जांपल से। से आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, अब मुझे एक असाइनमेंट मिला जो मैम ने मुझे कहा कि एक हफ्ते बाद बेटा आप इसको सबमिट कर दो, और भी असाइनमेंट्स हैं मेरे पास जो मुझे कल सबमिट करना है या परसों सबमिट करना है। अब आज शाम को मैं काम करने बैठी कल के असाइनमेंट, मैं कल के असाइनमेंट का काम कर रही हूँ, पर मैं वो जो एक हफ्ते बाद असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचती जा रही हूँ। एवरी डे आई एम डूइंग सम वर्क, और मैं वो जो हफ्ते बाद असाइनमेंट सबमिट करना है उसके बारे में सोच रही हूँ। सो एक हफ्ते बाद मुझे जो असाइनमेंट सबमिट करना है उसके बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मुझे कितना प्लानिंग करना है ये मुझे सोचना है। जिस समय मैं जो काम करूंगी मैं उसके लिए थॉट क्रिएट करूंगी, और बहुत सारी जो नेसेसरी वो ऑटोमेटिकली भी होते रहते हैं, हमें उनकी बहुत प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। प्लान करना है, बट हमें ये डिसाइड करना है कि कितनी प्लानिंग। ठीक है, ये इसका यही मतलब है, द लेसर यू थिंक द बेटर इट इज। ओके, ऐसा नहीं कि मैम ने कहा लेसर यू थिंक बेटर इट इज, कुछ काम है उसको छोड़ दे, उसके बारे में सोचना ही नहीं। हाँ? चलिए, नेसेसरी थॉट्स के बाद है हमारे नेगेटिव थॉट्स, थॉट्स अबाउट द डार्कर साइड ऑफ एवरी इवेंट। और है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स रिलेटेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी इवेंट। इन्हें समझते हैं हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सेम सिचुएशन में कोई नेगेटिव थॉट भी क्रिएट कर सकता है और कोई पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट कर सकता है। हम इजीली रिलेट कर सकते हैं, अभी कोविड पीरियड में लॉकडाउन में सब लोग घर में, सो सम पीपल वर वेरी हैप्पी दैट दे गॉट टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, पॉजिटिव थॉट। और कुछ लोग बहुत परेशान थे कि अरे सारा टाइम फैमिली के साथ रहना पड़ रहा है, कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। सो सिचुएशन सेम है, पर सोचने का तरीका अलग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज मम्मा घर में नहीं है, तो मैंने अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ प्लान किया, अरे बहुत दिन हो गए हम लोगों ने ना पुलाव नहीं खाया, चलो बढ़िया सा पुलाव बनाते हैं, ओके हम आराम से बैठकर खाएंगे, और बहुत सारा नहीं बनाएंगे क्योंकि हम 2 लोग ही हैं आज खाना खाने। तो मैंने अपने भाई बहन के साथ
लेकर और बहुत बढ़िया सा सब तैयारी करके एकदम डिलिशियस सा पुलाव दे दिया। अब जैसे ही हम लोग खाने बैठे, उसी वक्त हमारे घर गेस्ट आए, मेरा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आ गया। अब इस सिचुएशन में मैं नेगेटिव थॉट भी क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसा भी करता है क्या कोई, बिना बताए किसी के घर आता है क्या? बताना तो चाहिए था ना, मैंने तो ऑलरेडी कम पुलाव बनाया है, अब ये लंच टाइम पे आ गए, हम खाना खाने ही वाले थे। ऐसे बहुत सारे थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं ऐसे थॉट्स। तो ये हमने क्रिएट नेगेटिव थॉट्स क्रिएट। और सेम सिचुएशन में हम ये भी सोच सकते हैं, अरे वाह तू कितने सही टाइम पे आया, पता है मैंने अपने भाई के साथ मिलकर बहुत डिलीशियस हम साथ में बैठे थे। सेम सिचुएशन बट थॉट्स आर डिफरेंट। और अगर हम उसे और इम्प्रोवाइज करें तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे मैंने तो थोड़ा पुलाव ही बनाया था, दो की जगह हम 3 लोग हो गए ना खाने वाले। ऐसा करते हैं जल्दी से ना, हम एक एक पराठी सेक लेते हैं एंड देन वील हैव पराठी पुलाव एंड दही। तो मेरी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई, स्किल्स इम्प्रूव, कुकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुए और अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, हमारा और अच्छा हुआ, हमने उस सिचुएशन को एंजॉय किया। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो किस तरह की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव इन द सेम सिचुएशन। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी। एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे, मम्मा पापा। जो पापा होते हैं वो हर रोज ही यूज्ड टू ड्रिंक एवरी डे, बहुत ड्रिंक कर कर रात को देर से घर पर आना, फिर घर आकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, करना, बच्चों को मारना, घर का ऐसा एनवायरमेंट। अब ये एनवायरमेंट में ही ये दोनों बच्चे धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा, पॉजिटिव, वेल बिहेव, वेल सेटल्ड, और दूसरा बच्चा जस्ट लाइक हिज फादर। आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, आवाज इको कर रहा है सेम सिचुएशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों बच्चे जब बड़े हो गए, एक बच्चा बहुत अच्छे से सेटल्ड, एक बच्चा बिल्कुल पापा जैसा। अब जो बच्चा पापा जैसा था, जब उससे बात हुई तो उसने ये कहा कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ, तो आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली मेरा बिहेवियर ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही बनूंगा। और जो दूसरा बच्चा था जो अच्छे से सेटल हो गया था, उसका जवाब ये था कि मैं बड़ा हुआ हूँ ये देखते हुए कि मेरी मदर ने कितना स्ट्रगल किया है, हमने कितना सफर किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं भी सेम वही पर्सनालिटी बनूं? मुझे तो अच्छा बनना ही था। सो सिचुएशन वाज सेम बट थॉट प्रोसेस वाज इंटायरली डिफरेंट। अगर जिसने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखा उसकी लाइफ अच्छी हो गई, है ना? उस पर्सन ने अपना डेस्टिनी चेंज कर लिया, जैसे हमने शुरू में बात की दैट योर थॉट्स दे मेक योर डेस्टिनी। उसने अपना डेस्टिनी चेंज किया, और ना सिर्फ अपना डेस्टिनी चेंज किया, आई थिंक उसने अपने पूरे घर का माहौल अच्छा किया, उसने अपनी मदर को भी हेल्प किया। सो दैट इज हाउ पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स अस। सो वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि एक रिसर्च बोलता है कि हम एक दिन में 60 to 100,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। एंड देयर इज वन मोर रिसर्च विच सेज कि हमारे सुबह के जो थॉट्स होते हैं वो हमारे डोमिनेंट थॉट्स होते हैं। डोमिनेंट थॉट्स मतलब मैं सुबह जो सोचूंगी, मैं दिन भर में वैसे ही थॉट्स क्रिएट करूंगी उससे रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह के वक्त हम अच्छा अच्छा सोचें। इनफैक्ट हम पूरे दिन ही अच्छा अच्छा सोचें, पर सुबह के वक्त हमें खास तौर पे अच्छा सोचना है, क्योंकि अगर सुबह के वक्त हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर वो दिन में भी हमारे वैसे ही थॉट्स आएंगे। सो क्योंकि वो डोमिनेंट थॉट्स हैं, इसलिए हम सुबह पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो गई, वी आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना अपसेट हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करें? और टू सम एक्सटेंट कई बार क्लाइंट्स से बात करके उनकी सिचुएशन को देखकर, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि हाँ थोड़ा मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छा सोचना। तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते तो हम कोशिश कर सकते हैं कम से कम हम
राइट थॉट्स क्रिएट करें, मतलब हमारी थिंकिंग राइट, जो सिचुएशन जैसी है हम उसे वैसे ही देख रहे हैं। अच्छा, अब राइट थॉट्स कौन से होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो राइट थॉट्स कौन से होते हैं उसे समझने के लिए हम समझेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, रॉन्ग थॉट्स क्या होते हैं जो हमें क्रिएट नहीं करने हैं, और अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई वैसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है तो हमें उसे भी एम्पावर करना है, उसे भी हेल्प करना है कि ऐसे थॉट्स हमें क्रिएट नहीं करना। चलिए अब हम समझते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग या रॉन्ग थॉट्स कौन से। सो फर्स्ट वन इज मैग्नीफाइंग। मैं स्कूल का एग्जाम्पल कोट करूंगी। लंच ब्रेक में बच्चा भागता हुआ आया, मैम मैम, वो दो बच्चों का नाम लेके, मैम उनका सर फूट गया। अब भाई सर फूट गया तो फटाफट जाकर देखना तो पड़ेगा कि क्या किया, गिर गए या क्या हुआ। जब फटाफट वहां गए और देखा तो बोथ ऑफ देम वर प्लेइंग, खेलते हुए दोनों का सर आपस में टकरा गया और थोड़ी सी लग गई, छोटे बच्चों को लग भी जाती है, दैट इज इट। ठीक है, और उसका क्या हम इंफॉर्मेशन आई कि उनका सर फूट गया। ठीक है, हम भी करते हैं ऐसा, कोई और करता है तो हमें हंसी आती है, बट हम भी कई बार सिचुएशंस को मैग्नीफाई कर देते हैं, तो हमें सिचुएशन को मैग्नीफाई नहीं करना है। एक और एग्जांपल छोटे बच्चों का, एक ड्रॉप खून निकलेगा एंड देन दे विल टेल, अरे उसका तो खून बह रहा है। तो ठीक है, हमें सिचुएशन को इतना बड़ा नहीं करना है, सिचुएशन जैसी है वैसा देखना है, और हो सके तो उसको छोटा करके देखना है कि हाँ प्रॉब्लम आ गई बट हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये लाइफ सिचुएशन है, विल रिजॉल्व इट, जो जैसा है उसे वैसे ही देखें। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसकी पूरा जीवन खत्म नहीं हो गया है, एक साल हाँ उसका खराब हो गया, हम उसे ऐसे ही देखेंगे कि एक साल खराब हो गया, ऐसे नहीं देखेंगे कि ओहो अब तो इसकी लाइफ स्पॉइल हो गई, अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। सो सिचुएशंस को मैग्नीफाई नहीं करना है, जैसा है वैसा देखना। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ रॉन्ग थिंकिंग इज सर्चिंग फॉर नेगेटिविटी। सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, पर उसमें भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल कई बार कोट करती हूँ। किसी के घर हम गए, उसने हमें जलेबी सर्व की, और जलेबी खाकर मैंने कहा अरे ये बहुत मीठी है, मतलब दैट मीन्स कि नॉर्मल सिचुएशन में भी जलेबी है तो मीठी होगी, पर मैंने उसमें भी नेगेटिविटी निकाल ली, मीठे में मीठा ज्यादा है। तो हमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, जो सिचुएशन जैसी है उसे वैसे रखना है। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देनी है, आई कांट डू इट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। सपोज क्लास में किसी ने कहा मुझे लगता है आपकी बारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम ही बनोगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब काम अच्छे से हो रहा है, नहीं नहीं मैं कहाँ बन सकता हूँ। ऐसे थॉट्स क्रिएट नहीं करते हैं, जो सिचुएशन अच्छी है उसे वैसे ही लेना है। ओके, हियर आल्सो आई विल गिव वन, आई विल टेल वन शॉर्ट स्टोरी। दो सिस्टर्स होती हैं, बहनें। एक जो बच्ची होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, हर चीज में पॉजिटिव देख लेती है, जो भी लाइफ सिचुएशंस होती है, और एक बच्चा बहुत नेगेटिव होता है, दोनों बहनों में से। तो एक बार उनकी मम्मा सोचती हैं कि चलो जरा चेक करती हूँ ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले हैं कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा है, कैसे सोचते हैं। ऑपोजिट सिचुएशन हो, अगर उनकी पसंद की सिचुएशन ना हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो नेगेटिव वाली बच्ची होती है उसके रूम में बहुत सारे फ्लावर्स लगाती हैं, अच्छे से बलून्स लगाती हैं, बहुत सुंदर डेकोरेट करती हैं, बहुत प्लीजिंग सा एनवायरनमेंट बना देती हैं उसके रूम में। और जो दूसरी बच्ची होती है जो हमेशा पॉजिटिव सोचती होती है, उसके रूम में उसकी मम्मा अपनी फ्रेंड का एक पेट लाकर डॉग उसके रूम में छोड़ देती हैं पूरे दिन के लिए। तो वो डॉग उस रूम में सुसु पॉटी कर देता है, रूम को गंदा कर देता है। अब जब दोनों बच्चे अपने अपने रूम में जाते हैं, जो बच्चा नेगेटिव सोचता होता है वो जब अपने रूम में जाती है, वो देखती है अपना रूम, और रूम देखकर वो एकदम से रिएक्ट करती है, अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, क्या जरूरत थी ये फ्लावर्स और बैलून लगाने की। सो दिस वाज हर रिएक्शन। और जो बच्ची पॉजिटिव होती है वो अपने रूम में जाती है, देखती है फ्लोर गंदा हो रहा है, उसको साफ कर देती है, साफ करके यहाँ देखने लगती है। तो उसकी मम्मा पूछती हैं कि क्या देख रही हो। तो मम्मा मुझे लग रहा है आप मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हो, आप मेरे लिए पेट लेकर आई हो। सो सिचुएशन वाज सेम, बट सिचुएशन वाज व्हाट से वेरी नेगेटिव
फॉर द गर्ल हु वाज थिंकिंग पॉजिटिव, बट उसने उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लिया। तो हम भी अगर कोशिश करें तो सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, हमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। नेक्स्ट इज व्हाई मी एटीट्यूड। कुछ भी हो तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा भी होता है, तो कुछ ऐसा भी हो गया। लाइफ है तो लाइफ में सिचुएशंस आएंगी ही, मतलब 100 on 100 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज आर वे। ठीक है, दे विल बी देयर वे, we'll face situations, we'll meet people who do not have same opinion। हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका ओपिनियन हमसे डिफरेंट होगा। हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखने पड़ सकती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हो, बट अगर उस समय हम ये सोचने लगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो सोचने की जगह हम सोचे ये हो गया, ये सिचुएशन है, अब मुझे इसे डिसॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो हमें ये वाई मी एटीट्यूड भी नहीं रखना। okay? नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। यहाँ मैं दो एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज मम्मा खाना खाने बैठी, और जब वो खाना खाने बैठी तो उन्होंने अपनी बेटी या बेटे से कहा कि बेटा तवे पे मैंने रोटी डाल दी है, अब आप सेक कर ला देना मुझे, मैं खाना खा रही हूँ, तो मुझे वो चपाती आप सेक कर ला। अब बच्चे ने जब वो चपाती सेकी तो थोड़ी सी जली हुई चपाती जब उसने मम्मा को दी, तो खाना खाते खाते मम्मा का रिएक्शन आया, इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं हो सकता। ठीक है, एक काम ठीक से नहीं हो सकता, दैट मीन्स ही डिस्क्वालिफाइड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। हो सकता है वो बच्चा जब गेस्ट आते हो तो ट्रे में बहुत अच्छे से पानी का ग्लास रख के ले जाके गेस्ट को सर्व करता हो, चाय बहुत अच्छी बनाता हो, या हो सकता है पहले अच्छी रोटी बनाता हो, आज उससे जल गई। सो एक सिचुएशन आई और हमने बिल्कुल उसको इस तरह से कर दिया कि कुछ अच्छा है ही नहीं इसमें। अच्छा, एक और बहुत मजेदार एग्जांपल मैं देती हूँ, ये बच्चे शायद रिलेट कर पाएंगे उससे, कि आपने कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, मम्मा को अच्छा नहीं लगा, तो मम्मा ने वो बात पापा को बता दी। अब जब नेक्स्ट डे पापा ऑफिस गए, आप मेरी हर बात पापा को बता देते हो। अरे भाई, तुमने पहले जो 10 शैतानियां की थी, मम्मी ने वो नहीं बताया था पापा को, अभी जब तुमने ये 11th किया है तब बताया। सो डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव मीन्स जो पहले 10 अच्छी चीजें हो गई हैं, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना, उन्हें डिस्क्वालिफाई नहीं करना। ठीक है, लाइफ सिचुएशंस में। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेगेटिव थिंकिंग, जनरलाइजिंग। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि तुम पंजाबी होकर ऐसे करते हो, मतलब एक जनरल वो हमने सबके लिए सेम क्राइटेरिया रख लिया, like all men are like this, all women are like this, all North Indians are like this, all rickshaw drivers are like this, जनरलाइज कर दिया। हर कम्युनिटी में, हर क्लास में, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, किसी एक के साथ हमारा कुछ इंटरेक्ट हुआ, अच्छा या बुरा या जो भी, हम उसे जनरलाइज ना करें। ठीक है, स्पेशली हमारे खराब एक्सपीरियंस तो हम बिल्कुल भी जनरलाइज ना करें कि अगर किसी एक जने ने कुछ गलत बोल दिया तो सब बच्चे ऐसे होते हैं। कॉलेज में किसी सीनियर ने कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं, दे आर वेरी सेल्फिश। कॉलेज में किसी टीचर ने कुछ बोल दिया तो ऑल ऑल लेक्चरर्स आर लाइक दिस। इस तरह से कोई भी किसी को भी, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को, कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं करना। अच्छी बातें फिर भी हम सोच सकते हैं कि हाँ सब ऐसे अच्छे ही हैं, पर बुरी बात तो बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं करना। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, होल्डिंग। अच्छा, होल्डिंग, देखिए लाइफ में कई बार बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें बहुत दुख देती हैं। हम उस समय बहुत उदास हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। होल्डिंग मीन्स हमें होल्ड नहीं करना है, हमें सिचुएशन को लेट गो करना है। जो भी लाइफ सिचुएशंस आए उसे लेट गो करना है। अगर हम सोचें, अगर हम कोशिश करें तो हम हर लाइफ सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से समझाकर। अच्छा, अब होल्डिंग में भी क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमें लेट गो करनी ही है, बट आई हैव सीन
कि बहुत छोटी छोटी सी चीजों को भी ना हम पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे से मार्केट गए शॉपिंग करने, और शॉपिंग करते करते कुछ ट्राई करते करते गलती से इयररिंग गिर गया। अब वो एक इयररिंग खो गया, एक इयररिंग है, उसके लिए इतना परेशान, मेरा इयररिंग खो गया, मेरा इयररिंग खो गया, वो मेरा फेवरेट इयररिंग था, मेरा सेट खराब हो गया। सो वी डोंट हैव टू होल्ड द सिचुएशंस, ठीक है, हो गया, ठीक है। लाइफ में जो भी सिचुएशन आई, वी हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ये गलती हुई जो मुझे ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी, दैट्स इट, एंड देन लेट गो। उस सिचुएशन को जाने दीजिए, पकड़कर मत रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल और नन थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। इसे हिंदी में अगर हम बोले ना तो बोलते हैं आर या पार, मतलब बीच का रास्ता नहीं निकालना है, बिल्कुल आर पार का काम करना है, तो हमें वैसी थिंकिंग नहीं रखनी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सपोज किसी बात से आज हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, अब उसका सॉल्यूशन निकालने की जगह, बात करके पैचअप करने की जगह, हमने ये लिया, अरे अब तो इनके साथ गुजारा ही नहीं है, मुझे तो डाइवोर्स ही देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल आर पार, ऐसा नहीं, बीच का रास्ता निकालना है। और भी कई सिचुएशंस होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था इरिटेशन का, कि एक फ्रेंड ने देख के अब तो मुझे इसके साथ दोस्ती ही नहीं रखनी, आगे से तो मुझे इसके साथ कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। हम अपने दोस्त से बात करेंगे कि देखो 4 लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा नहीं करना, हम उन्हें एम्पावर करेंगे, ठीक है ना। हम ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पे नहीं जाएं, हम बीच का रास्ता निकालें, ओके। आफ्टर दैट वी हैव जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन मीन्स जरा सा कुछ हुआ और बिल्कुल मैंने तो फाइनल डिसीजन ले लिया। से फॉर एग्जाम्पल, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा आज ना मुझे ब्रेड बटर और चाय दे दो। सो द कंक्लूजन वाज, आपको तो मेरे हाथ का कुछ बना हुआ पसंद ही नहीं है, ठीक है। दिस इज जंपिंग टू द कंक्लूजन। या सपोज आपने मुझे या मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया, दो चीजें सेम, से मैंने आपको 2 इयररिंग्स प्रेजेंट किए, उसमें से आपने एक इयररिंग पहना, दूसरा नहीं पहना, एंड द कंक्लूजन इज, हाँ दूसरे वाला तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे भाई, अगर मैं आप 10 बारी वो सेम एक ही पहनो और दूसरा नहीं पहनो, देन आई कैन आस्क यू कि वो पसंद नहीं आया क्या। सो एकदम से लाइफ सिचुएशन आते ही हाँ ये तो ऐसा ही है, या कोई डिसीजन हमें नहीं लेना है, ठीक है। वी हमें जरूरत नहीं है एकदम से कंक्लूजन पे आने की, हमें चीजों को सहज लेना है, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही देखना। नेक्स्ट रॉन्ग थिंकिंग इज ऑलवेज मेंटालिटी। ऑलवेज मेंटालिटी मीन्स मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है। सपोज मुझे कहीं जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए और मेरी ट्रेन मिस हो गई, और स्टेटमेंट क्या आया, मेरी ट्रेन तो हमेशा ही मिस हो जाती है। अरे भाई हमेशा मिस नहीं होती है, हो सकता है मैं कहीं 10 बार घूमने गई, 2 बार ट्रेन मिस हो गई, 8 बार तो मैं ट्रेन से गई थी ना। सो ये ऑलवेज मेंटालिटी भी नहीं रखती, ठीक है। जो सिचुएशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, जो जैसा है वैसा ही उसे देखना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स हम अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, हमारे घर जो हेल्पर्स होते हैं उन्हें, बच्चों को लेबल करते हैं, ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है, ये हार्ड वर्किंग है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, या ये इंटेलिजेंट है, ये डल है, तो हमें वो भी नहीं, ठीक है। ऐसा करके हम दूसरों की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। हर कोई हर काम कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है, और हमें हमारा जो सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ हमसे मिलने वाले लोग हैं, उन्हें एम्पावर करना है, हमें उनकी एनर्जी डिप्लीट नहीं करनी। तो इसलिए किसी को भी लेबल नहीं करना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। और लेबलिंग बेस्ड थिंकिंग में भी आ जाती है। आफ्टर दैट वी हैव अ सेल्फ पनिशमेंट। कुछ भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन आई जो ठीक नहीं थी, उसके लिए मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ही किया था, मैंने ही कहा था, मुझसे हमेशा ऐसा हो जाता है, ये भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सेल्फ पनिशमेंट के साथ
एक और सिचुएशंस है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ भी गलत हुआ ना, मेरी वजह से ही हुआ है, मुझसे ही गलती हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे उनसे गलती हुई हो, उसने किया था, उसकी गलती थी, उसे तो मैंने समझाया था। तो हमें दोनों नहीं करना है, ठीक है? दूसरे को भी ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारी वजह से हुआ, और खुद को भी परेशान नहीं करना, सेल्फ पनिशमेंट भी नहीं करना। ओके, नाउ वी हैव नॉटिंग। नॉटिंग का मतलब ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो नॉट वर्ड नहीं समझता है, ठीक है? जैसे इस पिक्चर में है, आई डोंट वांट टू बी अ फ्रॉग। तो अगर इस फ्रॉग को फ्रॉग नहीं होना से प्रिंसेस होना है, तो उसको सोचना चाहिए था आई वांट टू बी अ प्रिंसेस। दिस मीन्स कि हमें फोकस करना है उन चीजों पे जो हम चाहते हैं कि हो, उस पे फोकस नहीं करना है जो हम नहीं चाहते, ठीक है? से अगर मुझे ये सोचना है कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, तो मैं कहूंगी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलती हूँ आई एम नॉट एंग्री, या तो मुझे ये स्टेटमेंट कहना है कि आई एम पीसफुल, ठीक है? और अगर मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे मीठा नहीं खाना, तो मैं बार बार ऐसे नहीं सोचती मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे मीठा नहीं खाना, क्योंकि वो मुझे नहीं करना है। मैं अपना सारा एनर्जी उसको नहीं दूंगी, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी। रादर आई विल थिंक दैट आई एंजॉय ईटिंग हेल्दी, मुझे अच्छा लगता है हेल्दी। सो दिस मीन्स जो हम चाहते हैं हमें उस पे फोकस करना है, जो हम नहीं चाहते हमें उस पे फोकस नहीं करना, राइट? एंड द लास्ट टाइप ऑफ रॉन्ग थिंकिंग इज फॉर्च्यून टेलर। अंतर्यामी नहीं बनना है, ठीक है? भविष्यवाणियां भी नहीं करनी है कि कुछ भी से कल मुझे ऑफिस जाना है ना, मुझे पता है कल सुबह बहुत बारिश होने वाली है, मैं टाइम से नहीं पहुंच, तो ऐसे फॉर्च्यून टेलर नहीं बनना। तुम जिस स्पीड से काम कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं। तो इस तरह से हमें भविष्यवाणियां नहीं करनी है, सिचुएशंस को जिस तरह से हैं उस तरह से समझकर उनको एक्सेप्ट करना। ये थी हमारी रॉन्ग थिंकिंग्स जो हमको नहीं करनी है, ठीक है? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम राइट थॉट्स क्रिएट करेंगे, राइट थिंकिंग करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर चुके थे 6 टाइप ऑफ थॉट्स के बारे में। लास्ट वाज पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद अब है ये एलिवेटेड थॉट्स। Elevated thoughts are highly charged, low frequency thoughts. अच्छा, elevated thoughts मतलब हम बोल सकते हैं thoughts related to spirituality, अच्छे thoughts, जैसे कि सबको माफ कर दो, सबका कल्याण हो, और the entire world is a family, इस तरह के thoughts, these are called elevated thoughts. These are like positive thoughts. Positive thoughts से थोड़े और अच्छे thoughts हो गए elevated thoughts. और elevated thoughts के बाद है zero thoughts. Zero thoughts मतलब हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है? अच्छा, कुछ भी नहीं सोचना है हम कैसे समझें? या हम ये, जैसे हमने अभी बात की थी नेसेसरी थॉट्स की, और हमने कहा था कि नेसेसरी थॉट्स भी द लेसर वी थिंक द बेटर इट इज, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं जीरो थॉट्स। जीरो थॉट्स मीन्स थॉट्स विच आर बियॉन्ड लाइक्स और डिसलाइक्स, अटैचमेंट और हेट्रेड, एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, विक्ट्री और फेलियर, एंड सो ऑन। मतलब कि कोई जहां जरूरत नहीं है वहां हमें कुछ भी सोचना नहीं है। And such thoughts, they conserve lot of energy and they promote stress-free life. जहां मुझे जरूरत नहीं है, जहां मेरा कोई से नहीं है, या मेरे कुछ सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां मुझे कोई थॉट नहीं क्रिएट करने हैं। अच्छा, जीरो थॉट्स हम कैसे अटेन करें ये स्टेज? आप अगर पे सर्च करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, इनर वैल्यूज एकेडमी के बहुत सारे मेडिटेशन कमेंट्री हैं। थर्ड आई मेडिटेशन से, मतलब बहुत सारे से मेरा मतलब है सेम कमेंट्री बट इट्स अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेजेस। हेलो मैम। तो आप जी जी, जीरो स्टेज पे हम क्या करें? कुछ सोचते नहीं है पर काम करते हैं, वो हमारे इनर सोल से आवाज आती है ये करना है, ये करना है, यही है ना जीरो थॉट्स? जी बिल्कुल बिल्कुल।
जीरो थॉट्स मतलब बस काम इनर सोल करना में है। आवाज आवाज अगर हम आती है, इसके बाद देखते हैं कि ये की करना है, दृष्टा इसके बाद होकर, ये करना है। आई एम सॉरी, हाँ, अंतरात्मा की आवाज जो आती है उसी में से काम होता चला जाता है। जी जी जी, ये कह सकते हैं कि साक्षी दृष्टा होकर सब काम कर रहे हैं। और हाँ, जिन्होंने काम करना है पर फीलिंग्स में नहीं जाना है। एक्चुअली वी नीड प्रैक्टिस फॉर इट। और हाँ, जो प्रैक्टिस। हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब यू विल गेट द मेडिटेशन कमेंट्री, थर्ड आई मेडिटेशन के नाम से, और काफी सारी लैंग्वेजेस में है, तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। व्हेन यू विल प्रैक्टिस दैट, उसका बेनिफिट ये है कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, और आपकी बॉडी भी हील होगी। बॉडी हील होगी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कभी अगर बहुत तबीयत खराब हो हमारी, हम जब सो जाते हैं, बीमार लोगों को बोलते भी हैं कि आप सो जाओ, मतलब सोते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी थॉट्स। जिस समय हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी हील हो रही होती है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी थॉट्स। जो एनर्जी है उसे बॉडी यूज कर रही है हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के मैम, लिए। प्रैक्टिस दिस। जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मैम, हमें जीरो थॉट्स के लेवल पे रहने के लिए, स्टेज में रहने के लिए हमें साइलेंट रहना होगा। साइलेंस के ऊपर कुछ बता सकते हैं आप? वो साइलेंस किसी मीन्स, और दिन, आज नहीं, हाँ, किसी और दिन। जितना आज ये टॉपिक, हाँ जी, हाँ अभी मैं ये टॉपिक आज चले दीजिए, तो फिर किसी दिन आप साइलेंस के ऊपर पूरी विस्तार से बताएंगे क्या तो मैं करना है, कैसे करना है। मेरा बहुत बड़े प्रॉब्लम है साइलेंस में रहते। मैं कभी कभी अच्छा कर पाता हूँ और कभी कभी बहुत बुरा भी करता हूँ। भाई हम सब सीख रहे हैं ब्रदर, वी ऑल आर लर्निंग, ठीक है। तो मुझे ये हाँ लगता है हाँ, कि आप उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे तो बहुत हाँ, आई विल, लाभदायक होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैक्सिमम मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं उसके बारे में और आप सबके साथ शेयर करूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और साइलेंस जैसा आप बोल रहे हैं और मैं समझ पा रही हूँ, जब हम बोलते हैं साइलेंस तो सिर्फ मुंह का साइलेंस नहीं, हमें यहाँ से साइलेंट होना है, मतलब थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, देन वील सेव आवर एनर्जी। जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कितनी बारी लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं हम मुंह से कुछ नहीं बोलते बट हम मन में बहुत जल्दी 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 बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। सो उससे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। साइलेंस मीन्स ऑफ कोर्स मुंह से तो हमें चुप रहना ही है, यहाँ से भी चुप रहना है, और अगर कोई सिचुएशन है जिसमें हमें कुछ बोलना है तो आई थिंक उस सिचुएशन में हम प्यार से आराम से अपनी बात को कन्वे कर दें, मन ही मन बहुत सारे विचार जलाने की जगह कि और फिर हम यहाँ से साइलेंट हो। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ही हैं, टीचर ने कुछ काम दे दिया कि बेटा ये काम कर देना, कल तक कर देना। बच्चे को लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब बच्चे ने मन में सोचा मैम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, मैम मैम ने मुझे ये काम दे दिया, ये काम इतनी जल्दी कौन करेगा, ऐसे काम तो कोई भी नहीं कर सकता है, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। एंड देन वो बात चार लोगों से डिस्कस की, यू नो दैट टीचर शी टोल्ड मी टू डू दिस, मेरे से तो नहीं होगा ये काम, कैसे मैं ये काम करूंगा। इतने सारे थॉट्स क्रिएट करने की जगह राइट सॉल्यूशन था वो बच्चा आराम से प्यार से रिस्पेक्टफुली अपनी टीचर को अप्रोच करता और बोलता कि मैम आई थिंक मैं कल तक ये काम नहीं कर पाऊंगा, या वो ये बोलता कि मैम क्या आप किसी और को भी मेरे साथ ये ड्यूटी दे सकते हैं, हम दो लोग मिलकर करेंगे तो शायद ये काम कल तक हो जाएगा। दैट मीन्स जो सिचुएशन आई थी मैंने उस समय जितना सोचना था सोचा, बोला, और उसके बाद फिर साइलेंट, उसके बाद फोकस कि ये जो काम असाइनमेंट मुझे मिला है इसे मुझे कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब हमने आज डिस्कस किया 8 टाइप ऑफ थॉट्स, हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं उनको। टॉक्सिक थॉट्स, डिग्रेडिंग थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स भी हमें कम सोचनी है, टॉक्सिक डिग्रेडिंग वेस्ट थॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं सोचने, ठीक है। जो नेसेसरी है उनका भी कम, the lesser we think the better it is. Then negative thoughts, positive thoughts, elevated thoughts, सबके लिए अच्छा अच्छा, and then zero thoughts,
जितना कम सोचेंगे उतनी ज्यादा अपनी एनर्जी सेव करेंगे, उतना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, हम फिजिकली और ज्यादा हेल्दी रहेंगे. सो दैट इज द बेस्ट स्टेज. Okay, we need practice for that. I am also practicing. And then we have 13 types of negative thinking. Yeah, 13 types of wrong thoughts. Magnifying, किसी बात को इतना बड़ा बना दिया. सर्चिंग फॉर नेगेटिविटी, बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ है, उसमें भी कुछ नेगेटिव ढूंढ लिया. वाई मी एटीट्यूड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी नहीं सोचना. देन डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी देखना है. ठीक है, उन्हें ये नहीं कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो. अरे भाई 10 अच्छे काम भी कर रहा है वो सेकंड पर्सन, उसकी एक बात को हमें इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, रादर हमें एम्पावर करना है सबको, जो भी हमारे साथ काम करते हैं उन सब. जनरलाइजिंग, सब लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं करते. ठीक है, होल्डिंग, बातों को पकड़कर नहीं रखना है, जस्ट लेट गो, जाने दो, उसे छोड़ दो. ऑल और नन थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग नहीं, बीच में आराम से शांति से बीच का रास्ता भी निकालना. ऑलवेज मेंटालिटी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं सोचना. लेबलिंग मीन्स किसी को लेबल नहीं करना है, ये स्मार्ट है, ये डल है, ये इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ है. नो नो लेबलिंग. सेल्फ पनिशमेंट, कुछ भी गलत हुआ मेरी वजह से ही हुआ, मैंने ही कर दिया. और इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था, कई लोग ऐसे भी होते हैं. आई नो वन पर्सन, शी सेड कि अगर मेरी गलती नहीं होगी ना तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, और अगर मेरी गलती होगी ना, कोई मुझे 100 जूते भी मार लेगा तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा. बट it at times it is very difficult to tell such people कि आपकी गलती है, they will not accept. तो हमें वो ऐसा भी नहीं बनना कि जो भी गलती है वो सामने वाले की, और ऐसा भी नहीं बनना कि जो भी गलत हुआ वो मेरी वजह से हो गया. ठीक है. देन 12th इज नॉटिंग. नॉटिंग मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड नॉट वर्ड को नहीं समझता है, तो हमें जो चाहिए हमें उस पे फोकस करना है, नॉट पे फोकस नहीं करना. आई एम नॉट एंग्री नहीं, आई एम पीसफुल. ठीक है. आई एम हेल्दी. ठीक है. आई एम नॉट सिक नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एंजॉय हेल्दी ईटिंग. जो चाहिए उस पे फोकस करेंगे हम. अब हम जो अपनी स्टेटमेंट्स फ्रेम करेंगे उसमें नॉट वर्ड नहीं आए. ठीक है. देन फॉर्च्यून टेलर, भविष्यवाणियां नहीं करनी है, अंतर्यामी नहीं बनना है, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा. ओके. नाउ लास्ट एक छोटा सा होमवर्क है. हमने थॉट मैनेजमेंट की बात की, तो हम कोशिश करके देखें 1-2 हफ्ते अपने थॉट्स को मैनेज करने का, और आई थिंक देन इट विल ग्रेजुअली बिकम आवर हैबिट एंड वी विल सेव लॉट ऑफ एनर्जी. क्या होमवर्क करना है हमें? इवेंट, जो इवेंट हुआ हम वो लिखेंगे. से फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे विश नहीं किया. ठीक है, दिस इज एन इवेंट. फीलिंग, फीलिंग मैं थोड़ी सी उदास हुई या मुझे निग्लेक्टेड फील हुआ, अरे मेरा बर्थडे है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, विश तो करना चाहिए था. देन रॉन्ग थिंकिंग, मैं तो उसे बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ पर वो शायद है नहीं, मैं तो हमेशा उसका बर्थडे याद रखती हूँ, मैं तो उसके बच्चों का भी बर्थडे याद रखती हूँ, वो मेरा बर्थडे भूल गई, वो मुझे विश करती, मैं हमेशा विश करती हूँ, अब मैं भी विश नहीं करती. ठीक है, तो हमने बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स क्रिएट कर दिए, ये हमारी रॉन्ग थिंकिंग हुई, उसको हम लिखेंगे. एंड देन राइट थिंकिंग. राइट थिंकिंग इज मे बी शी वॉज बिजी, या हो सकता है कुछ घर की जिम्मेदारी हो, माइंड से स्किप हो गया हो, कल विश कर देगी, ये हुआ राइट थिंकिंग. तो हम इस चार्ट में लिखेंगे इवेंट्स जो हुआ. ठीक है. फीलिंग जो हमने फील किया, उसके बाद रॉन्ग थॉट्स जो हमने क्रिएट किए, और राइट थिंकिंग क्या था. ठीक है, ये लिखेंगे हम, कुछ दिन करेंगे ऐसा. देन वील चेक कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, हम कितने इम्प्रूव हुए, हमने कितनी एनर्जी सेव की. देन we come to the end of the session, and this says learning time management makes you a man, but learning thought management makes you a complete man and human being. So I believe कि we all are going to be wonderful human beings जो बहुत अच्छे से रहेंगे, अपनी पूरी environment को, अपने aura को बहुत positive बनाएंगे और सबको अच्छा अच्छा feel करवाएंगे. Thank you so very much. Thank you.
Thank you, ma'am. Are there any questions now? Sister Pooja, Samarpita here. हमने तो जाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर द प्रॉब्लम इज कि हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हमको कैसे करना है। तो उस पे आप क्या बोलेंगे? कैसे करना है पे जी क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो हमने जान लिया, पर कैसे करना है, हाउ टू डू इट? कैसे करना है पे सिस्टर समर्पिता, मैं ये सोचती हूँ कि लाइक आई हैव गिवन अ टॉक, अच्छे से बात की, बट मैं ये बोलूँ कि आई एम एबल टू मैनेज ऑल माय थॉट्स, ऐसा नहीं है। वी नीड प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने कहा भी था कि हम अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया, यूट्यूब पे हम सर्च करें तो स्पिरिचुअलिटी हेल्थ की मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी मेडिटेशन कमेंट्रीज है। इफ विल कीप अ चेक, जैसे कि हम 60 to 100,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, अगर हम थोड़े से कॉन्शियस होंगे और हम सोच कर कोशिश करेंगे कि हम कम थॉट्स क्रिएट करें, तो surely we'll be successful. It needs practice, it will take some time, but of course we'll be successful. थैंक यू। Anybody else? I'll be more than happy to answer the question. I'll try to answer the question, rather I should say that. अगर किसी को कोई query है तो please पूछ लीजिए। I think we can end the session. Yeah, ma'am. So, thank you, ma'am, for this wonderful session. Now, may I request Ms. Divya Panchal to give the vote of thanks for the session. Divya is also a first-year student of BSc Psychology in Christ University. She is also an intern at Spirituality Health in a Values Academy. Over to you, Divya. Thank you, Ipshita. As many people say, with a new day comes new thoughts and new strengths. When Pooja ma'am was explaining about thoughts, my mind metaphorically thought about thoughts as seeds which grow into a ripe fruit, just like a small thought which would grow and lead to a miraculous deed. This session was very insightful and informative. Thank you for your time and effort, and thank you, Ipshita, for hosting the session. Be happy. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, Ipshita. Thank you, Divya. Thank you, Samarpita sister. And thank you so very much, Azim Bhaiji. Thank you. थैंक यू सो मच। For this I hope I